Ladies and gentlemen, there's been a massive political face-off between the Bharatiya Janata Party and the Samajwadi Party in the state of Uttar Pradesh, and this is with regards to what's really happening in Sambhal. This has basically led to some sort of a political tourism. In fact, there was an attempt that was made by the administration to prevent first the Samajwadi Party workers and then the Congress workers from carrying out what they said, a demonstration to bring out the truth in Sambhal. In fact, ladies and gentlemen, let's also take you through what is it that the locals of the area have to really say about this entire issue and how exactly are they really looking at the claims that have been made by one side. Remember, this all started with a local court basically ordering a survey to be carried out in the mosque premises. The Hindu side has basically contended, stating that there are signs of a Hindu temple and there should be nothing wrong if a survey is actually carried out. Now, this has led to a political face-off with some basically arguing that this is yet again another attempt that has been made by the Hindu side to try and alter the Places of Worship Act and the fact that the debate was basically settled after the Ayodhya issue, and perhaps this need not be raked once again. Take a look at this ground report and then we also go across to our reporters and the big exclusive coming up on a short while from now. Republic has brought to you all the exclusive updates from Uttar Pradesh's Sambhal. संभल में एक बार फिर वही मंजर देखने को मिला जो आपने पहले कभी देखा था। तब इमाम की हत्या की अफवाह फैलाकर पूरे शहर भर में तांडव मचाया गया था, तो इस बार कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस की टीम पर हमला किया गया, सर्वे की टीम पर हमला किया गया, जिसमें कहा गया कि ये शाही जामा मस्जिद यहाँ पर हिंदू मंदिर होने का दावा बार बार किया गया। लेकिन आखिर हर बार ये संभल सुलगता क्यों है? संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में ऐसा नहीं है कि इस तरह की हिंसा, सांप्रदायिक तनाव पहली बार आपने देखा हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। चाहे हम बात करें सन 1935 की, सन 1976, 1978, जब देश का विभाजन हुआ तब भी इस तरह के हालात पैदा हुए। लेकिन इस बार शाही जामा मस्जिद में जिस तरह से सर्वे की टीम पर, पुलिस की टीम पर हमला किया गया, उसके बाद अभी भी देखिए हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जगह जगह आपको इसी तरह से बैरिकेड लगे हुए दिखाई देंगे। आरएएफ की टुकड़ियां आज भी तैनात हैं। हिंसा के देखिए कई दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे इलाके में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आज भी हालात लगभग वैसे ही हैं जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई 24 नवंबर सन 2024 के दिन। उसको लेकर अब कहा यह जा रहा है कि कभी भी यहाँ पर हालात एक बार फिर अब तनावपूर्ण हो सकते हैं। हिंदू लोगों में आज भी डर है कि कहीं इस तरह के हालात यहाँ पर एक बार फिर से ना बन जाए, क्योंकि न्यायिक टीम भी लगातार इस बात की तैयारी में है कि हालात यहाँ पर बिगड़े नहीं। इसीलिए न्यायिक टीम लगातार ये कोशिश करे कि भविष्य में आने वाली इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए। जो लोग इस तरह की घटनाओं को लगातार हिंसक घटनाओं में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आखिर उनको कैसे रोका जाए। ऐसे में संभल में इस तरह के सांप्रदायिक तनाव से आखिर निजात कब मिलेगी, कब लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। Republic spoke to various individuals from the Sambhal district who gave out more details about the communal tensions. Let me also go across to my colleague Ajay Dubey, who's joining us on this broadcast. Ajay, with regards to the investigation that has been carried out so far, multiple videos indicate that this was a pre-planned conspiracy. What is it that they have with regards to the evidence that has been gathered? Ajay, I'll request you to stay on with us. Zia-ur-Rahman, the Samajwadi Party parliamentarian, is also joining us. I'll request even Ajay to stay on. जिया साहब, आपसे सबसे पहले सवाल उठाना चाहूंगा क्योंकि एक तरह से बीजेपी ने सीधे तौर से आपके ऊपर आरोप लगाया है कि संभल में जो वायलेंस हुआ है उसके पीछे आपका हाथ है, और दूसरी बात है आपकी लड़ाई आपके परिवार वालों के साथ, उसके कारण एक तरह से ये वायलेंस दिख रहा है। क्या कहा? परिवार वालों के साथ लड़ाई? क्या मतलब? जो आरोप आप पर और आपके परिवार वालों के ऊपर लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सीधे तौर से एक तरह से ये प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी था। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे वीडियोस दिखाए जा रहे थे जिससे ये पता चलता है कि एक तरह से इसको ठीक तरह से प्लान किया गया था और साथ ही साथ इस पूरे मामले को आगे लेके जाने के ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ। सुनिए,
बिल्कुल सही कहा, प्री प्लान था, साजिश के तहत ये साजिश रची थी पुलिस प्रशासन ने शासन के इशारे पर। आपके और पास मुझे क्या अफसोस सबूत है कि संभल के अंदर जो ये घटना घटी है कि जो संभल एक अति संवेदनशील जगह रहा है और आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस, आप आरोप लगा रहे पुलिस पर, प्रशासन पर। जनाब अब आपकी बात का सवाल आप जवाब देने दो तो मैं दूं भी जवाब आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस। अब आप जवाब लीजिए ना मेरी बात का। अब आपने सवाल किया तो देखिए, जब मैं बता रहा हूं कि जो घटना घटी है बहुत अफसोसजनक है। संभल बहुत सुख शांति के साथ में रह रहा था और सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन अफसोस है जिस प्रकार साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए हम लोग शुरू से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और वो न्यायिक जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से होनी चाहिए, जिससे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि सच उजागर होना चाहिए कि कौन इस घटना के अंदर शामिल है, किसने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिलाया है और उन दोषियों को आप कह रहे हैं। अब मुझे सवाल तो पूछने दीजिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि ये साजिश है और ये साजिश रचा गया है पुलिस और प्रशासन ने, सवाल ये उठता है कि पहले दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरे दिन जब सर्वे किया जाता है तो एक तरह से मॉब निकल कर आती है और यह देखा जाता है कि कई सारे कॉल किया जा रहा है कि लोग आए और सर्वे को रोका जाए। तो क्या आप फिर भी कहेंगे कि ये प्रशासन का है, जबकि आपके पास सबूत नहीं है? प्रशासन ये कहती है कि देखिए कई सारे ऐसे वीडियोस है जिस पर साफ तरीके से नजर आ रहा है कि किस तरह से इसको प्लान किया गया था। अब आप मेरी बात का जवाब देंगे? आपसे सवाल करता हूं, ये बताइए कि ऐसा पहले कौन सा ऐसा सर्वे हुआ है कि जिसके दिन के दिन याचिका दायर हुई, उसके अंदर आदेश हुआ कोर्ट का सर्वे का और 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी सर्वे कराने के लिए पहुंच गए? मुझे बताइए दूसरा ऐसा घटनाक्रम कहीं हुआ हो? कहां, किस जगह हुआ? क्यों पहुंचे इतनी जल्दबाजी के अंदर पुलिस प्रशासन के अधिकारी? क्या मतलब था उनकी? क्या साजिश थी? क्या दिखाना चाहते थे? क्या कोर्ट ने आदेश दिया था ऐसा कि तुरंत सर्वे करना है? नहीं दिया ना। कोर्ट ने आदेश दिया था, 29 तारीख डेट लगाई थी। क्या ऐसे कोई आदेश आप कहते कोर्ट पर? क्यों आपने ये सवाल उठाया? मुझे भी बोलने दे। क्या कोर्ट ने ऐसी कोई रोक लगाई थी? जियाउर रहमान जी, क्या कोर्ट ने ऐसी कोई रोक लगाई थी? क्योंकि सर्वे करने के लिए लोकल कोर्ट का यह मानना था कि सर्वे किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि हिंदू साइड इसमें इन्वॉल्व है, प्रशासन इन्वॉल्व है, तो मुझे यह बताइए कि जब हिंदू साइड खुद सर्वे चाहती है तो वो क्यों करेगी ऐसे? आप सवाल का जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे तो कैसे बताऊं? या तो जवाब मैं आपको सवाल, क्योंकि आप कह रहे थे कि कोर्ट की बात है, तो मैं तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मुकम्मल हो जाने दीजिए। और मैं ये कह रहा हूं, आप ये बताइए पहले सर्वे के दौरान जब मैं और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, क्यों कोई घटना नहीं घटी? क्यों पुलिस प्रशासन, पब्लिक उस दिन भी थी और पब्लिक कोई लड़ना नहीं चाहती थी, सिर्फ इतनी जल्दबाजी में इन्होंने सर्वे कराया। बहुत हमने कोर्ट का सम्मान करते हुए पूरी कमेटी है जामा मस्जिद की और हम जनप्रतिनिधियों ने और सभी उलमाए किराम ने सर्वे को कराया। कोई बीच में रोड़ा उत्पन्न नहीं किया, जनता ने भी। 24 घंटे की समय दिया गया था, 24 घंटे की समय दिया गया था सर्वे करने के लिए। कौन कह रहा है आपसे? अगर आप कोर्ट के आदेश देख लीजिए तो जियाउर रहमान जी, साफ तरीके से ये कहा गया था कि पहले दिन, आप देखिए कि पहले दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी ये हादसा हुआ है, ये हादसा दूसरे दिन होता है। आप मुझे बताइए कोर्ट का क्या आदेश था? अगर यही है साजिश अगर होता तो ये मेरे को बता दीजिए कि पहले दिन ही क्यों नहीं हो जाता। आप मेरे को बताइए ना, आप कह रहे साजिश है, मैं तो देखिए मैं सवाल रख रहा हूं, मैं आपके ऊपर मैं सवाल रख रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि साजिश है, प्रशासन की ओर से साजिश है, तो ये बताइए पहले दिन क्यों नहीं हुआ? देखिए पहले दिन भी होना चाहिए था। देखिए अगले दिन होता है ये। कोर्ट का आदेश क्या था आपको मालूम है? आपने पढ़ा है उसको? आप बताइए, आप क्योंकि आप मेरे सवाल के जवाब से आप ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि समय नहीं दिया गया, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने ये साजिश की। तो मेरा सवाल यही बनता है कि अगर साजिश है, मान लीजिए, चलिए मान लेता हूं कि साजिश है, तो ये बताइए कि पहले दिन ही क्यों नहीं हुआ? अरे मैं वही तो कह रहा हूं, पहले दिन घटना करना चाहते थे, उस दिन भी लाठीचार्ज करना चाह रहे थे, मैंने खुद रोका है उसको।
मैंने खुद आकर के बीच में मैं कड़ी बना हूं पुलिस और जनता के बीच में, जब पुलिस लाठीचार्ज करना चाह रही थी मैंने कहा कि यह हंगामा मैं नहीं होने दूंगा। आप लोग जिस उससे आए हो मकसद से आप अपना सर्वे करो, लाठीचार्ज कैसे कर दोगे आप बगैर किसी रीजन के? और मैं अगर वहां मौजूद होता उस दिन तो मैं उस दिन भी इस घटना को, पुलिस की इस मंशा को होने नहीं देता। आप ये बताइए कि आइए कहते हैं कि पुलिस प्रशासन से आपने सवाल करा, आपने पुलिस प्रशासन से वो कह रहे हैं कि हमारे चलिए आपको एक और तथ्य दिखाता हूं। चैनल को छोड़ने के लिए मजबूर हूंगा अगर आप मेरे, क्योंकि आप टीवी देख पा रहे हैं। आप मेरी सब जवाब को नहीं सुनेंगे तो मैं छोड़ने के लिए मजबूर हूँ। पहले मेहरबानी, मैं सवाल तो पूछना मेरा बनता ही है, क्योंकि आप तो कुछ कह रहे। चलिए आप खत्म कर लीजिए, उसके बाद सवाल पूछा। आप खत्म कीजिए। बिल्कुल, आप मैं अपना पूरा कर दूं। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, आप उन पुलिस अधिकारियों से ये पूछिए जो एक समय ये कह रहे थे हमने गोली नहीं चलाई। जब वीडियो वायरल हुई तो दिखा किस प्रकार ये स्टेट फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, पिस्टल से, राइफल से। और जब फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरा रुख देने का कोशिश किया कि घटना आपस में एक दूसरे की गोली लगी है। अरे ये बताइए कि वहां पर क्या कोई जाति बिरादरी का झगड़ा हो रहा था जो एक दूसरे की गोली लगेगी? जब अपनी मस्जिद के लिए वहां लोग निगहते खड़े हुए थे, एक वीडियो मुझे दिखाइए जिसमें कि इनके पास तो ड्रोन कैमरे भी थे कि अगर जनता गोली चलाती कहीं नजर आए तो मुझे दिखाइए। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ इनका अधिकारी सीओ कह रहा है कि मैं जाहिल, हम पे पत्थर मारेंगे तो हम गोली चलाएंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कोई, अगर आप लाठी चार्ज कराओगे तो मजबूरन पत्थर भी नहीं चलाएगा वो आदमी? आपने लाठी चला के क्यों उकसाया? क्यों आप नारे लगाते हुए सर्वे करने के लिए पहुंचे? कि आप कोई फतेह करना चाह रहे थे मस्जिद को? आप नारे लगाते हुए वहां पे पहुंचे और आपने लाठी चार्ज करके सिर्फ इतना पूछा। एक सवाल, अब मैं सवाल करूं और उसके पत्थर के जवाब में आपने गोली चला दी। हमारे 5 लोगों की जान। अब मैं सवाल करूंगा तो आप कहेंगे कि अब मैं सवाल करूंगा तो आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में रोकने की कोशिश कर रहा हूं। जी फरमाएं। अगर आप टीवी देख पा रहे हैं इस वक्त तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं इस वक्त फुल फ्रेम दिखाया जा रहा है। मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, ये जांच की बात है, पर सवाल ये उठाया जा रहा था कि सुबह सर्वे शुरू होने से पहले, कुछ ही घंटों पहले, सुबह 8 बजे के करीब आप देख रहे हैं कि कई लोग वहां पे आ जाते हैं और ये कहा जा रहा था कि कुछ कॉल किया गया था कि लोग आइए, सामान लेकर आइए। अब प्रशासन ये कहती है कि अगर ये कॉल आए और साथ ही साथ सामान लेकर आने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बात ये उठती है कि किस तरह से इसे सर्वे को रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एक तरह से आप ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि एक तरह से ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो, एक तरह से मैसेज जानी चाहिए। और आपके आदर्श नेता ये कहते हैं कि ये इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे पहले ये सवाल कर रहा हूं कि ये बताइए, ये वीडियो देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये प्री प्लान था? क्या आपको उसमें ये लग रहा, आप कैसे कह सकते हो ये लाठी? मैं सवाल कर रहा हूं, आप मेरी ओपिनियन की बात नहीं कर रहे। मैं अपनी ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। प्री प्लान प्रशासन का था, वो हमारे लोगों की हत्या करना चाहते थे। हमारे लोगों को आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग पुलिस के लाठीचार्ज से पहले की ये वीडियो? मैं आपसे कह रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज पर टाइम स्टैम्प वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज की वीडियो पुलिस के लाठीचार्ज की बाद में है। लोगों ने, आप मुझे दिखाइए जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, इसमें किसी के हाथ में हथियार है? किसी के हाथ में हथियार है? आप बताइए मुझे, कहां से प्री प्लान हो गया? आपको पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं टाइम की बात, आपने सवाल उठाया कि मुझे कैसे पता ये टाइम की बात। मैं तो कह रहा हूं कि ये टाइम स्टैम्प है, सुबह 8 बजे की है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अगर हथियार कहाँ है, चलिए कई और आपको वीडियोस भी दिखा देंगे और तस्वीरें भी दिखा देंगे जिया और साहब की किस तरह से कई सारे जगह पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी की इस्तेमाल की जा रही है। जनता ने हथियार नहीं दिखा पाएंगे, आपके पास है ही नहीं वीडियो। जनता ने हथियार नहीं लाए। क्या आप मानते हैं कि पत्थरबाजी हुई? क्या आप मानते हैं? अगर पुलिस, अगर आप माफी चाहते हो, आपसे एक बात कहता हूं, अगर आपके या हमारे बच्चे होते वहां पर, अगर वो लाठी के बदले पत्थर चलाते तो क्या उनको गोली मार देगी पुलिस? अरे हमारा कानून भी ये कहता है कि बड़े से बड़ा अगर मुजरिम भी हो, क्रिमिनल भी हो, तो उसको भी सरेंडर का मौका दिया जाता है। जिस देश की नागरिकों की आपको सुरक्षा दी जाती है, आप उनका मर्डर करोगे, कत्ल करोगे आप उनका, सिर्फ पत्थर चलाने पर? और पत्थर चलाने का मौका क्यों दिया? क्यों लाठीचार्ज करिए आपने? क्यों सिचुएशन को नहीं संभाला आपने? खैर, अब मैं आपसे, जनाब, मैं आपसे बहुत देर रहता, लेकिन आई एम सॉरी, मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है, इसलिए अब मैं आपसे बिल्कुल खुलकर एक आखिरी सवाल करूंगा,
एक आखिरी सवाल करूंगा आप जाने से पहले। सुनिए, मैं आपके उस पर चैनल पर जो आया था 5 मिनट की समय के लिए क्या आया था, ऑलरेडी 10 मिनट में बैठ चुका। फिर मौका मिलेगा जरूर आपके साथ बैठूंगा और बिल्कुल तफसील से आपके साथ में गुफ्तगू करूंगा। एक आखिरी सवाल जिया, मैं आपसे समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आपसे 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ एक 30 सेकंड लूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोग जानना भी चाहेंगे। क्योंकि एक में जहां पे पिस्टल की भी दिखाई दे रही है, एक तस्वीर ऐसे, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी तस्वीर नहीं है। I'm told that Ziaur Rahman has already left from there. Now, Ziaur Rahman faces some very serious allegations. The Bharatiya Janata Party has leveled some allegations. And as far as the administration is concerned, the administration is largely looking at whether at all this was a pre-planned conspiracy to begin with. Now, the videos that you see on your screens right now, these are images that were just before the survey began. Now, this is also being debated. It's a contentious issue. Ziaur Rahman, who happens to be a Samajwadi Party parliamentarian, says that this is absolutely untrue. In fact, he's leveled an allegation against the administration by saying that the administration had pre-planned this. And there was an attempt that was made to basically carry out an attack on the locals there, to provoke the locals. Now, that's the allegation that the Samajwadi Party has leveled. Now, this has led to a major political face-off. What's the truth? Here at Republic TV, we have put together all the visuals, every visual which only indicates towards one side. That was this really pre-planned? And why exactly nothing really happened on the first very day, but all that you see, the violence thereafter, was only on the second day when the survey was being carried out. Here we have put out the full report, what the locals have to say, and once again an attempt made to the person who is right in the middle of this entire controversy, Ziaur Rahman, parliamentarian from the Samajwadi Party. Stepping into a short break, on the other side we'll be back with more news.